आप सभी का स्वागत है हमारे इस रोजगार सोसाइटी के अकाउंट्स ट्रेनिंग के सेशन में। और जैसा कि आपको पता चले गया होगा कि ग्रुप में मैसेज भी मिला होगा कि आज का जो सेशन है वो ओरिएंटेशन के ऊपर है। तो ओरिएंटेशन में हम करते क्या है, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हेलो। जो ये हमारा ट्रेनिंग है अकाउंट्स की उसके बारे में एक ओवरव्यू दे पाएँ। आपको बता दें कि आपको क्या सीखने वाला है, किस तरह की क्लासेस होंगी, यह क्लासेस किस तरह से होंगी, आगे बढ़ेंगी। सो मैं काफ़ी अ, अपने आप को हेलो। काफ़ी। हाँ जी। तो काफ़ी मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये इनिशिएटिव हमारे प्रेज़िडेंट जो मिस ज्योतिका कालरा मैम द्वारा लिया गया है कि आपको हम अकाउंट्स की क्लासेस दे पाएँ और आपको अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज दे पाएँ। और इस कोर्स को जैसा कि ऑर्गेनाइज़ कराने में और इसके मॉड्यूल को तैयार करने में जिन्हीं मेंबर्स सभी मेंबर्स का हाथ रहा है, उन सभी के को तहे दिल से शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे कि हम इन सेशंस को क्लासेस को अटेंड करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। और आपसे गुज़ारिश रहेगी कि आप कोशिश करें कि हमेशा आप पेन और या पेंसिल के साथ, पेपर के साथ बैठें और जो भी आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो भी आपको सिखाया जा रहा है, उसे नोट करें, ताकि उसे आप भूलें ना और आप दोबारा उसे फिर से आगे टेस्ट के लिए या फिर जो भी आपसे पूछा जाए उसके लिए आप तैयार रहें। सो जो ये सेशन है वो पॉडकास्ट फॉर्मेट में होगा, जिसमें एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछेगा और दूसरा उसका आंसर देगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे वो हमारे प्रेज़िडेंट मिस ज्योतिका कालरा मैम होंगी। और जैसा कि आज के हमारे रिसोर्स पर्सन नरेंद्र कुमार चांद सर ने हमको जॉइन किया है, वो उन सभी प्रश्नों का आंसर देंगे और इसी के थ्रू आप जानेंगे कि क्या-क्या आप सीखने वाले हैं, क्या-क्या इस क्लास में होने वाला है। So, without wasting any time, I would like to invite Sanju Saini for the brief introduction of today's resource person, Naren Kumar Chand sir, and our president as well. Over to you, Sanju Saini. Good evening, everyone. My name is Sanju Saini. It gives me great pleasure to welcome you all to this orientation program. Today, we have the privilege of being joined by an eminent personality whose extensive knowledge and vast experience in taxation and financial investigation make him inspiration to many. It is honor to introduce Shri Narendra Kumar Chand, an esteemed officer of the Indian Revenue Service IRS from 1990 batch. He recently retired as the Chief Commissioner of Income Tax Central 1, Mumbai, after an illustrious career spanning over 3 decades. Born in 1964, Shri N.K. Chand holds a distinguished academic background. He completed his graduation in commerce from the prestigious Sri Ram College of Commerce, University of Delhi in 1984, and further pursued a master's degree in commerce from the Delhi School of Economics in 1986. Adding to his academic credential, he qualified as a cost accountant from the Institute of Cost and Works Accountants of India ICWAI in March 1987. His passion for academic led him to serve as a lecturer at Guru Gobind Singh College of Commerce, University of Delhi, where he taught financial accounting and cost accounting to undergraduate students for 3.5 years before joining the IRS. Throughout his distinguished career in Income Tax Department, Shri N.K. Chand has held diverse and significant positions, handling key functions such as assessment, audit, system, investigation, and administration across multiple locations. Notably, he served as a department representative for nearly 5 years and as a commissioner of income tax transfer pricing over 3 years. His expertise in financial investigation was further recognized when he was selected as an additional director in the Serious Fraud Investigation Office SFIO on deputation in 2012, where he served for approximately 2.4 years. His keen interest in taxation and litigation led him to pursue a law degree while in service, successfully earning his LLB in 2014. In the final phase of his service, Shri N.K. Chand played a pivotal role in handling a central charges, overseeing critical matters of taxation and enforcement. His wealth of knowledge, extensive experience,
and commitments to public service make him an invaluable resource for this orientation program. We are pleased, we are privileged to have Shri N.K. Chand with us today, and we look forward to gaining valuable insight from his vast experience. Now, I also want to introduce Ms. Jyotika Kalra. Jyotika Kalra is an advocate on record at the Supreme Court of India and a formal member of National Human Rights Commission. She is also the president of Saksham Rozgar Society, where she is decided to advancing the knowledge and skill development of youth. Over to you, ma'am. So, welcome Narendra ji to this session of accounts training of Saksham Rozgar Society. मुझे तो ये लग रहा है कि आपका प्रोफाइल देखकर, आपकी जानकारी देखकर, आपकी नॉलेज और आपका सब एक्सपीरियंस देख के, इतनी बड़े बड़े ओहदों पर आप रहे, SFIO में रहे, आप इनकम टैक्स कमिश्नर रहे, आप डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहे, आपने कॉमर्स में पढ़ाई करी, आपने पढ़ाया कॉलेज में, आप इतने सीनियर ऑफिसर हैं और अभी भी आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि इतना कॉम्बिनेशन हम अपने स्टूडेंट्स को आज दे पा रहे हैं। और जो नरेंद्र जी, हम आप थोड़ा सा परिचय अगर सक्षम रोजगार सोसाइटी का दें, तो बेसिकली एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर हमारा जैसा नाम भी सजेस्ट करता है कि पढ़ाने का हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि बच्चे या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एम्प्लॉयबल बने, मतलब वो पैसा कमा सके, उनके हाथ में हुनर हो। और इसी कड़ी के चलते हम एक स्कॉलरशिप का तो हमारा रेगुलर रहता ही है, हमने ब्लाइंड स्टूडेंट्स का भी स्कॉलरशिप ऐड किया और आज बहुत सारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स ने भी हमको ज्वाइन किया हुआ। तो मेरा जब भी ऐसे स्टूडेंट अपने बच्चों के साथ, इनके साथ इंटरेक्शन होता है, तो जब ये पूछें कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे उसमें से ये जवाब देते हैं कि वो IAS, IPS, UPSC बनना चाहते हैं। तो एक तो आप, मैं कह रही हूँ शुरुआत में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आप बता पाए कि आपकी जो जर्नी, जो आप IRS बनते हैं, वो कैसे, मतलब क्या जब आप पढ़ रहे थे तभी आपने ये सोच लिया था कि मुझे IRS बनना है, या फिर जब आप पढ़ा रहे थे तो आपको लगा कि पढ़ाने के साथ साथ इसकी भी तैयारी कर ले, इसका एग्जाम दे दें? वो एक थोड़ा सा, ऑल्दो काफी पुराना वो है, बट स्टिल बच्चों को एक हम एक ऐसा एक इंसाइट देना चाहते हैं, क्योंकि जनरली जो मैं देखती हूँ कि बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ के IAS, IPS की या UPSC की तैयारी में जुट जाते हैं। तो वो एक थोड़ा सा अपने लाइफ के साथ शेयर करते हुए आप बताएं, तो मुझे लगता है बच्चों को उसमें काफी फायदा होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे अकाउंट्स के लिए। ज्योतिका जी, संजू सैनी जी, अभिषेक जी और सक्षम रोजगार सोसाइटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस मौके पर बुलाया और आज पहला सेशन जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आपने बताया और जो मुझे पहले भी थोड़ा ज्ञात है कि जैसा कि आपकी सोसाइटी का, समिति का नाम इंगित करता है कि आप रोजगार के निमित्त, क्योंकि आज एक ये बड़ी चैलेंज है कि हमारे युवा पढ़ लेते हैं लेकिन क्या वो एम्प्लॉयबल हो पाते हैं। तो उस कदम में आपका ये कार्य करना बड़ा ही सराहनीय है। और उस कड़ी में आपने इस चीज को भांपते हुए कि जो जनरल सामान्य व्यक्ति हैं, वो अगर अकाउंट्स के करियर में जाएंगे तो छोटी से लेकर बड़े नौकरियां तक कर पाए। लेकिन आपने एक बात का जिक्र किया कि एम्प्लॉयबिलिटी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि नॉलेज को इम्पार्ट करें और स्किल को डेवलप करें। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आज जितने भी हम रोजमर्रा में देखते हैं कि स्किल की कमी है, थ्योरेटिकल नॉलेज होगी या जो चीज चाहिए, क्या इंडस्ट्री और
बिजनेस और इंडस्ट्री के साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो सामन्वय होना चाहिए वो अगर कम है तो उस गैप को आप भर उसकी गैप की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारे युवा अधिक से अधिक एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जाएं। तो उसके लिए आप की सोसाइटी को, आपके प्रयास को साधुवाद। अब बात करते हैं सिविल सर्विसेज की। जी, हमारे देश में सरकार की तरफ से ऑफर की जाने वाली सबसे उच्च सर्विसेज जो हैं वो सिविल सर्विसेज की एग्जाम की से यूपीएससी कंडक्ट करता है और उससे ही सभी सेलेक्ट होकर आते हैं। तो इसमें बहुत पहले 1979, तो आज 46 साल पहले हो गए, तो इसमें एक सुधार आए थे। तो पहले जो अगर आईएएस देना होता था तो उसको लिखना होता था और उसके लिए अलग एक आधा परीक्षा होती थी। इसी तरह से आईपीएस के लिए भी अभी एक ही कंबाइंड एग्जाम है। और जितने भी आज आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं या अन्य अन्य सर्विसेज में हैं, तो आप कहें तो रेलवे की कई सारी सर्विसेज हैं, ट्रैफिक सर्विसेज है, पर्सनल सर्विसेज है, ऐसे ही पोस्टल की सर्विस है, ऐसे ही बहुत अन्य सर्विसेज हैं जिनकी सिलेक्शन, जो ग्रुप ए सिलेक्शन है, वो यूपीएससी के थ्रू होती है और यही अधिकारी ऊपर तक पहुंचते हैं। और मुझे भी ऐसा मौका मिला, मैं भी एग्जाम में बैठा, सिविल सर्विसेज एग्जाम में, और उसमें सफलता लेने के बाद मैं आईआरएस मैंने चुना और उसको अभी मैंने लगभग 34-35 वर्ष की सर्विस देकर 34 वर्ष की सर्विस पूरी कर अभी मेरा सेवानिवृत्ति हुई है, रिटायरमेंट हुई है। तो सबसे पहली बात ये कहूँगा कि अपनी जर्नी में, क्योंकि मेरा कॉमर्स था विषय और मैंने कॉस्ट अकाउंटेंसी भी की और मेरे को इंडस्ट्री में भी ऑफर हुए अकाउंटेंसी की वजह से, इंडियन ऑयल में मिला, ओएनजीसी में भी जॉब मिला और कई जगह से ऑफर आते थे और टीचिंग में भी करने का मौका मिला। और टीचिंग के साथ साथ मेरे कुछ मित्र दिल्ली यूनिवर्सिटी से एग्जाम दे रहे थे और वो भी मेरे साथ प्राध्यापक थे, लेक्चरर्स थे। तो उसी समय उनसे हमारे मित्र ही थे, लेकिन हम अकाउंटिंग वाला ये प्रोफेशनल कोर्स साथ साथ कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैंने एक किया दूसरा किया, तो बीकॉम और एमकॉम के साथ साथ किया, तो उसमें उतना समय नहीं मिल पाता था। जब हो गया और अध्यापक के रूप में, लेक्चरर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई, तो उस समय भी काफ़ी समय मिलता था और उस समय साथ साथ तैयारी करने का एक मौका मिला। और हमारे मित्र जो अभी रिटायर हुए हैं, वो हम 4-5 मित्र थे, तो 2 मित्र दे रहे थे और 2 मित्र हम पूछने गए थे कि भाई आप कर रहे हैं तो आपका कैसा कैसा जा रहे हैं पेपर्स। तो डिस्कशन हुआ और उसी समय उन्होंने ही सजेस्ट किया, मेरे मित्रों ने, कि आप भी एक ट्राई मार लो। तो उस समय मैंने कहा कि आप हमारी मदद करेंगे, तो उन्होंने पूरी मदद की और उन्होंने कुछ तैयारी भी कर रखी थी। फिर हमने 4 लोगों ने मिलकर तैयारी की और एक दो और भी साथी थे, तो हम चारों के चारों टीम भावना से तैयारी कर सेलेक्ट हुए। एक आईआरएस कस्टम और एक्साइज, अब जीएसटी वाली सर्विस, और 2 लोग हम इनकम टैक्स की सर्विस में आए। एक मेरे मित्र पोस्टल सर्विस में ज्वाइन किए और हमारी जो समकक्ष थे, क्लास में थे एमकॉम की, उनके भी कई लोग सेवाओं में गए। पुलिस सर्विस में मिस्टर पंडा गए, राजीव जैन साउथ कैंपस से थे, वो इंफॉर्मेशन सर्विस में गए। ऐसे ही वसुधा जी थी, वो भी इंफॉर्मेशन सर्विस में गए। इस तरह से रामचंद्र थे। इस तरह से माहौल
उस समय यूनिवर्सिटी का था। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो कि हम एक सीरियस स्टूडेंट्स में हमारी गिनती होती थी। हम पढ़ाई करते थे फोकस देकर, और हमारे अच्छे मित्र थे जिन्होंने कंपटीशन काट के और पुल हिम डाउन वाले कोई भी हमारी भावना नहीं थी। सभी को हम मिलकर ऊपर उठाएं। मेरा भी हो सकता है स्थान, और अगर 850 हैं तो उसमें चारों भी हो सकते हैं। तो ऐसी सोच के साथ, टीम भावना के साथ हमने मिलजुल कर पढ़ाई की और उसमें सफलता पाई। और मुझे लगता है कि मेहनत, फोकस, ईमानदारी के साथ मेहनत करके हमारे बाकी साथी अ, इस दिशा में कदम उठा सकते हैं। उसके लिए अच्छी तरह से ज़रूर विचार विमर्श कर लेना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस का भी अवलोकन करना चाहिए, और मैं किस क्षेत्र में आगे जा सकता हूँ, क्या मेरे सब्जेक्ट की पकड़ है, उसको भी समझकर हम तैयारी करें। और नरेंद्र जी, आपके इस जो आपने बहुत अच्छे से बताया उसमें अब मैं थोड़ा सा और बच्चों की जानकारी के लिए जानना चाहूंगी कि लगभग आजकल कितनी वैकेंसीज निकलती हैं यूपीएससी की, लगभग 1000 के करीब कभी। और उसमें कितने आईएएस आईपीएस आई, मतलब वो मोटा मोटा कैसे रहता है उसका डिवीजन? देखिए, हर एक वर्ष में अलग अलग रहता है। 100-150 आईएएस रह सकते हैं, इसी तरह से 150 आईपीएस रह सकते हैं। और इसमें अभी जो आज की व्यवस्था है उसमें आरक्षण भी है। और वो आरक्षण हम सभी को पता है जो सरकारी नौकरियों में है। और जो भी क्योंकि 15% अनुसूचित जाति के लिए है, 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए है, पिछड़े वर्गों के लिए भी है, और हैंडीकैप्ड के लिए भी उस तरह से सुविधाएं हैं। और इनफैक्ट मैंने जब लुधियाना में काम करता था तो मेरे मातहत मेरे साथ ही एक डॉक्टर थे जो खुद व्हील चेयर पर ऑफिस आते थे। तो मैं उनको देखकर दंग होता था कि कितना डिटर्मिनेशन है, कि पोलियो की वजह से वो ग्रस्त थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद एमएस किया ऑप्थेल्मोलॉजी में, और फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज भी क्रैक किया, और वो मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि इस तरह के लोगों ने बड़ी जद्दोजहद के साथ, अपनी मेहनत के साथ उसको छोड़ा नहीं, अपने लक्ष्य को। ऐसे ही दूसरे भी हमारे अफसर साथ में थे। तो सभी वर्गों से अफसर्स आते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो आपने जो रिजर्वेशन का बताया, बहुत अच्छे से आपने सब एक्सप्लेन किया, परसेंटेज भी बताई। इकोनॉमिकली बैकवर्ड की भी रिजर्वेशन है कोई क्या इस नौकरी में? क्योंकि शिक्षा में तो है अभी। पिछड़े पिछड़े वर्ग में ओबीसी अगर वो, हाँ, ओबीसी, और ये इकोनॉमिकली। मेरी जानकारी से तो हाँ, ठीक अभी। है। तो हम अपने विषय पर आते हैं, क्योंकि आपका कॉमर्स से ही जुड़ा हुआ था, अकाउंट्स की आपकी शिक्षा और वो सब रहा, तो लगा कि एक थोड़ा सा हम अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए वो भी एक पक्ष सबके सामने रखें। तो पहली बात हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि अकाउंटेंसी जो है एक सब्जेक्ट, उसकी क्या महत्व है आपकी डे टू डे लाइफ में, मतलब दिनचर्या में किसी भी व्यक्ति के अकाउंटेंसी का क्या महत्व रहता है? कितना इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंसी की जानकारी? अगर बहुत छोटे से एग्जाम्पल्स में लें तो, अगर मुझे अ, अगर एज ए स्टूडेंट मेरे को अगर जेब खर्च भी मिलता था, तो मैं एक जनरल एक हिसाब किताब लगाता था कि इतना मेरे को इस चीज पर खर्च करना है, मेरे को इतना किराए पे खर्च करना है, इतना। तो बेसिकली ये करता था कि मेरे को बजट बनाना पड़ता था कि ये चीजें मुझे करनी है और ये मैं करूंगा। और फिर मैं अगर उसको लिखता था कि ये खर्चे मैंने किए, ये मेरी खर्चा था, जेब खर्च,
यानी कि इतना मेरे पास आया और ये मैंने खर्च किया, और फिर मैं उसको हिसाब लगाता था कि मैं कहाँ करना चाहता था और क्या किया। तो ये भी एक डे टू डे में तो रहता है। फिर छोटे दुकानदार हैं, तो उनको भी एक अकाउंटिंग करनी पड़ती है, उनको बिल बनाने पड़ते हैं, खरीदारी करनी पड़ती है, उसके ऊपर जीएसटी टैक्स है तो उसका हिसाब की करना पड़ता है। फिर ये सब होने के बाद उसको ये देखना पड़ता है कि कौन सी सामान बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना पड़ता है। उसी तरह से बहुत सारी चीजें रहती हैं कि चाहे वो छोटा बिजनेस हो, फिर अगर हम सैलरी कमाते हैं तो सैलरी का हिसाब किताब हमारा जनरली बैंक अकाउंट से हो जाता है, तो हमें फिर टैक्स भी देना पड़ता है। तो अकाउंटिंग से तो पाला जुड़ जाता है, तो चाहे वो छोटा व्यवसाय हो, सैलरी हो, क्योंकि उसी की गणना के हिसाब से हमें आगे ध्यान देना पड़ता है। और इसीलिए अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो अकाउंटिंग का स्कोप भी बढ़ जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर परिवार को अपने अपने हिसाब से अपने अपने बजट को अकाउंट करना पड़ता है। और मतलब अगर आय की गणना करें तो आय के हिसाब से भी, और अदरवाइज अपने डेली रूटीन में, नहीं तो हमारा बजट गड़बड़ा जाता है। तो अकाउंटिंग बेसिकली बिजनेस को सेंटर में रखकर हम देखते हैं कि बिजनेसेस रन करने के लिए उनका हिसाब किताब रखना पड़ता है। और हिसाब किताब बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं तो उसमें भी अकाउंटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो चाहे वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हों, छोटा सा दुकानदार हो, और बड़े से बिजनेसेस हों, उसको रखना पड़ता है। और हमारे रेगुलेशंस भी हैं, सभी लोगों को साल भर में एक बार रिटर्न भरनी पड़ती है। बिजनेसेस अगर उनकी इनकम हुई है, यानी कि एक्सपेंसेस से आय उनकी ज़्यादा थी, तो उस आय के ऊपर उसको टैक्स भी देना पड़ता है अगर वो इनकम उससे ज़्यादा है। तो इन सब के चलते, रेगुलेशंस के चलते, अकाउंटिंग हैज इमर्ज्ड एज ए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन बिजनेसेस। और दूसरे, जहां तक गवर्नमेंट की बात है, तो गवर्नमेंट में भी सभी को अपना अकाउंट हिसाब किताब देना पड़ता है। रूल्स के हिसाब से खर्चा करना पड़ता है और रूल्स के हिसाब से उस खर्चे को पास करना पड़ता है, और उसी हिसाब से अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और रखना हिसाब रूल्स के हिसाब से रखना पड़ता है। इसी तरह से लॉज हैं, टैक्सेशन के हैं, ऑडिट की रिक्वायरमेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हमारे देश में हैं। तो वो बिजनेसेस का हिसाब रखते हैं, अकाउंटिंग रखते हैं, जिससे जो टैक्स के प्रोविजंस हैं उसको भी ध्यान में रख के और उसकी गणना की जा सकते हैं, और टैक्स की पेमेंट के, और टैक्स की पेमेंट आप सब जानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अ, देश के विकास के लिए धन की आवश्यकता रहती है, और धन टैक्स के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। और भी माध्यम है, तो टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम्स है, जीएसटी है, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, पहले गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स भी हुआ करते थे। तो ये सरकार को चलाने के लिए और देश के विकास के लिए, दोनों चीजों के लिए हमें धन की आवश्यकता रहती है। तो अभी अभी बजट पास हुआ है, जो जनवरी में 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। तो उन सब चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आपकी संस्था है, तो इन संस्था को भी अपना रिसीट्स, लोगों से डोनेशन होंगे, कंट्रीब्यूशन होंगे, वो लेंगे और अपने जो खर्च करेंगे, ट्रेनिंग पे खर्च करेंगे, किसी को टीएडीए देंगे, किसी को आने जाने का खर्चा देंगे, कंप्यूटर्स होंगे, इन सब के लिए भी जो खर्चे होंगे उनका भी हिसाब रखना पड़ेगा, और रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा एग्जाम्पशंस के लिए। तो बहुत सारे तरह के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस हो,
वकील के ऑफिस हैं, उन सब में अकाउंटेंट्स की जरूरत है, बिकॉज बिल्स काटने हैं, रिसीट्स करनी है, रिसीवेबल्स लेने हैं, बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, और इनकम की गणना करनी है। और इस तरह से इसका स्कोप जो है वो ऑल परवेसिव है। और नरेंद्र जी, एक जो अकाउंटेंट और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जो दो नॉमेनक्लेचर हैं, जो दो नाम हैं, जो दो प्रोफेशंस हैं, इनको आप थोड़ा प्रकाश डालें। कैसे एक अकाउंटेंट क्या होता है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, क्या उनकी पढ़ाई रहती है और क्या उनका स्कोप ऑफ वर्क रहता है? देखिए, ऐसा है, मैं अगर मेरे पिताजी का अगर कोई कार्य है, वो छोटा दुकान चलाते हैं, कोई और प्रोफेशन करते हैं, तो मैं उनके काम में अगर मदद करता हूँ, बिल को बनाता हूँ, कोई पैसा देता है उसका हिसाब रखता हूँ, जिसको बोलते हैं कि भाई कैश रिसीव कर लिया, जिसको उधार दिया उसका हिसाब किताब रखता हूँ, तो ये बेसिक अकाउंटिंग हो जाएगी। तो आई कैन बी सेड टू बी डूइंग द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज वो मेरे से हिसाब मांगेंगे कि ये क्या हुआ। तो मैंने कोई सामान बेचा, मैंने कोई सर्विसेज दी, तो उसका हिसाब रखा जाएगा कि कितनी आमदनी हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है। तो उसके लिए अकाउंटिंग, ये बेसिक अकाउंटिंग। और जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब है कि जो एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि पार्लियामेंट के 19 पार्लियामेंट का एक्ट के बना हुआ है, 1949 में ये पारित हुआ। और उसका उद्देश्य है कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बनाया, वो उसका प्रशिक्षण देते हैं, एग्जाम्स करते हैं, ट्रेनिंग के लिए नियम बनाते हैं, और फिर उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट की उपाधि या उसकी डिग्री, या उसको जो भी डिप्लोमा का है, डिग्री का है, डिग्री के इक्विवेलेंट है, तो वो प्रदान करते हैं, जिससे कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हैं। जब वो एग्जाम पास कर लेते हैं, तो उसमें 3 साल की ट्रेनिंग है। कुछ लोगों को फाउंडेशनल कोर्स करना पड़ता है, इंटरमीडिएट करना पड़ता है, फिर 3 साल की ट्रेनिंग सीए के ऑफिस में या जो प्रैक्टिसिंग फर्म्स हैं उनके साथ करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसमें ऑडिट, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ये सब एस्पेक्ट को देखा जाता है। तो जब वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो उनको वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है। तो ये ट्रेनिंग और सभी एग्जाम, इंटरमीडिएट, फाइनल और उससे पहले फाउंडेशनल, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये एक कठिन परीक्षा रहती है। इसके रिजल्ट की परसेंटेज भी काफ़ी कम रहती थी, अभी तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। और इसमें अकाउंटिंग के, सिर्फ अकाउंटिंग एस्पेक्ट नहीं है, अकाउंटिंग के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें आती हैं, थोड़ा इकोनॉमिक्स की पढ़ाई रहती है, थोड़ी अकाउंटिंग की रहती है, थोड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी डिफरेंट तरह के होंगे। तो इंश्योरेंस की अकाउंटिंग करनी होगी तो अलग होगी, इसी तरह से दूसरे जगह की अकाउंटिंग होगी तो वो भी अलग हो सकती हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग रूल्स हैं, इंश्योरेंस के लिए भी अलग रूल्स होते हैं। तो इस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। और जहां तक अकाउंटिंग या अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट है, तो जनरल भाषा में हम जो कहते हैं, तो वो अ, कोई भी हो सकता है। किसी ने बीकॉम किया है, फिर उसने अपना प्राइवेटली थोड़ी सी ट्रेनिंग ली, कुछ सॉफ्टवेयर पे काम किया, बड़े सारे सॉफ्टवेयर हैं। टैली एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिस पर अकाउंट्स रखे जाते हैं। ऐसे ही जोहो है, फिर सैप है। इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें विभिन्न विभिन्न तरह के ऑर्गेनाइजेशंस अपने अकाउंट्स की एंट्री और उसके रिजल्ट्स को मॉनिटर करते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल है, और अकाउंटेंट उनकी मदद भी करते हैं भिन्न भिन्न एस्पेक्ट्स पर। कोई परचेज को देख रहा है, कोई सेल्स को देख रहा है, कोई एसेट्स की अकाउंटिंग देख रहा है, कोई रिसीवेबल्स और पेएबल्स की अकाउंटिंग देख रहा है। तो इस तरह से भी हो सकता है, और सारी चीजें भी कर रहा है, अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहा है, बैलेंस शीट बना रहा है,
ये सब जो कार्य रहते हैं ये अकाउंटेंट भी करता है एज ए जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, अकाउंट क्लर्क और अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, इस तरह से। और चार्टर्ड अकाउंटेंट में फिर अभी तो कोई बहुत सारे उसके आयाम हो सकते हैं, तो वो इंडस्ट्री में भी एक्सेप्टेंस होती है, गवर्नमेंट में भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMAs के लिए आती हैं। इंडियन ऑयल है, ONGC, MMTC, STC, ये सब लोगों को प्रोफेशनली क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स की जरूरत रहती है, तो उसमें काम करते हैं। और अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो स्कोप काफ़ी है, वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में भी काम करते हैं, और भी मतलब काफ़ी स्कोप है, उसके बारे में तो बाद में किया जा सकता है, ये अलग ही टॉपिक बन जाएगा। और नरेंद्र जी, जैसे आपका लॉ का भी एक्सपीरियंस है, तो मेरा एक अगला सवाल है कि अकाउंट्स की नॉलेज, अकाउंट्स की ट्रेनिंग, उसके साथ लॉ को कैसे हम कनेक्ट करते हैं? मतलब कानून की पढ़ाई या टैक्सेशन में जो प्रैक्टिस की जाती है, तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा अगर इंटरप्ले दोनों का, ये कॉमर्स और अकाउंट्स की पढ़ाई और फिर देखिए, वकालत या टैक्सेशन हाँ, की वकालत। देखिए बिजनेस को अगर करना है, अगर बिजनेस सेंट्रल में आता है, तो बिजनेस एक एनवायरनमेंट में फ्लरिश करते हैं और उसमें रेगुलेशंस रहते हैं। तो रेगुलेशंस का जैसे ही रेगुलेशंस की बात करेंगे तो लॉ की बात करेंगे। अब अगर बिजनेसेस से ही इनकम टैक्स आना है, आज 20 लाख करोड़ से ऊपर 23 लाख करोड़ का बजट है जो इनकम टैक्स और इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स से आता है। और इसी तरह से लगभग 1.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपए पर मंथ GST का कलेक्शन आता है, और कस्टम्स और ड्यूटीज दूसरी उसके और भी सोर्सेज हैं। तो लॉ की जहां तक बात है, तो GST अगर देना है तो हमारी जो रसीद होगी, कोई चीज मैं खरीदूंगा तो वो मेरे को उसकी इनवॉइस मिलेगी, तो उसमें GST 6% लगना है, 12% लगा है, 18% लगा है, उस लगना है नहीं लगना है, वो तो वो सारी चीजें लॉ के हिसाब से चलेंगी। फिर अ, छोटे बिजनेस से जब हम जैसे ही बढ़ते हैं, तो लॉ प्रोवाइड करता है कि आप अकाउंट्स का ऑडिट करवाएं चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो यानी कि अकाउंट्स रखने की जिम्मेदारी भी है, और उनको सही तरीके से रखा है तो इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको देखेगा, उन अकाउंट्स को देखेगा, और उसको ऑडिट कर कर उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होती है। वो लॉ में है, इनकम टैक्स लॉ में है। GST में भी कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, और ऐसे ही इनकम टैक्स में भी कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, जिसमें कुछ एग्जम्पशंस पे, डिडक्शंस पे, या कुछ इवेंट्स पे वो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि लॉ, अकाउंटिंग, बिजनेस, इस सब का एक्सपर्ट भी रहता है, तो वो फिर एसएससीज की मदद करता है। इसी तरह से और अकाउंट एडवोकेट भी इसी तरह के फंक्शन कर सकता है। रिटर्न को भरना है तो रिटर्न को भरना है, और उन अ, जो बेनिफिट्स लॉ देता है वो असेसीज को मिले, टैक्स पेयर को मिले, उसकी जानकारी भी एक जो एक्सपर्ट है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और एडवोकेट है, वो दोनों इक्वल माने जाते हैं, क्योंकि टैक्स जो लगाया जाता है वो लॉ के अंतर्गत लगाया जाता है, इनकम टैक्स लॉ का। GST लगाया जाता है तो सेंट्रल GST और स्टेट GST हैं। तो लॉ के अनुसार भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आप खुद सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, तो 265 का जिक्र आता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। तो जितने भी टैक्सेस लगते हैं, सरकार लगाती है, पार्लियामेंट से पास होकर लगते हैं, और एग्जीक्यूटिव में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो इम्प्लीमेंट होते हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिसको हम कंप्लायंस बोलते हैं। यानी कि रिटर्न भरना, आपने कितनी सेल्स की, आपका सेल्स टैक्स कितना हुआ, आपने कितना
जीएसटी देने की बात हुई, कौन से चीजें बेची आपने, उसका रजिस्ट्रेशन लिया, यानी कि आप सरकार को बताएंगे कि मैं इस चीज का बिजनेस कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, मेरा रिटर्न और मेरा ये बिजनेस का एड्रेस रहेगा, ये मेरा हेड ऑफिस रहेगा, ये मेरे रिटेल ऑफिसेज रहेंगे, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो, और या फिर दूसरे छोटे हों, तो उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अगर वो थ्रेशोल्ड से ऊपर एक बिजनेस कर रहे हैं। लाइसेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंटीमेशन कि भाई मैं ये बिजनेस, ये व्यापार, ये मैं सर्विसेज दे रहा हूं, और अगर उस पर सर्विस टैक्स लगता है, ट्यूशन क्लासेस हैं तो उनमें भी उनको बच्चों से पैसा लेते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो इसलिए लॉ और अकाउंटिंग साथ साथ जाएगी, बिकॉज चाहे वो जीएसटी का हो चाहे इनकम टैक्स का हो, तो जब वो इनकम टैक्स भरा जाएगा, सरकार इकट्ठा करती है, वो लॉ के जरिए करती है, और ये दो लॉ जैसे मैंने बताया, दो तीन लॉ, कस्टम्स लॉ है, जीएसटी के लॉज हैं स्टेट और सेंटर के, और इनकम टैक्स का लॉ है। तो उसके अंदर जो कलेक्शन है, उसके अंदर की जो समझ करने की बात है, तो वो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स एट पार माने जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर ऑडिट। ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को परमिशन है, एक्ट के द्वारा उसी को अधिकारित किया गया है। और नरेंद्र जी, अब हम थोड़ा सा ये आ रहे हैं कि इस जो दोनों प्रोफेशंस हैं, अकाउंटेंसी से हम शुरू करते हैं। एक एंट्री लेवल पे एक अकाउंटेंट को कितनी तनख्वाह मिल सकती है, और दूसरी बात कि क्या उसमें काबिलियत होनी चाहिए कि कोई उसको उतनी तनख्वाह देगा? मतलब ये नहीं है कि आप बीकॉम है तो आपको अकाउंटेंट की नौकरी मिल जाएगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि एंट्री लेवल पे क्या बेसिक चीजें आनी चाहिए एक अकाउंटेंट को नौकरी पाने के लिए, और उसको कितनी सैलरी मिल सकती है? देखिए, अकाउंटेंट्स में फंक्शंस क्या हैं और उसकी क्या जिम्मेदारी है, और उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस और स्किल सेट, इन सब के ऊपर तनख्वाह डिटरमिन करती है। एक बात तो मैं स्पष्ट कह दूं कि अगर किसी कैंडिडेट को काम आता है तो उसकी वैल्यू है। एंट्री लेवल में हमने कुछ सीख लिया लेकिन हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आज जो मैं शुरुआत में बात की थी कि गैप है। गैप ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी में जो एम्प्लॉयर चाह रहा है, वो तो चाहता है कि मेरे पास आए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें थोड़ा ट्रेनिंग के लिए समय देंगे, अदरवाइज ट्रेनिंग के लिए इतने उत्सुक या इंटरेस्टेड या सब्र कहें तो वैसा नहीं रहता है। एम्प्लॉयर चाहता है कि काम जानने वाला आए, उसको मेरे को सिखाना ना पड़े, और वो जिस तरह से काम रहता है थोड़े से जल्दी में सीख ले और वो काम करना शुरू कर दे। तो ये तो एम्प्लॉयर की रहती है। और आज क्योंकि ट्रांजैक्शंस बढ़ गए हैं तो कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। ज़्यादातर अकाउंटिंग, छोटे बिजनेसेस में भी अकाउंट कंप्यूटर की मदद ली जा रही है। आजकल पेमेंट्स भी आती हैं तो ऑनलाइन आ रही हैं। तो इस सब चीज़ों के बीच में स्किल सेट में अकाउंटिंग आना, सॉफ्टवेयर में काम करना, कम्युनिकेशन कर पाना, एनालिसिस कर पाना, और उन अकाउंट्स में से उसको पढ़ पाना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम जूनियर लेवल पर देखें तो असिस्ट करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, डाटा एंट्री करना, या बेसिक अकाउंटिंग करना, या टैक्स की इनवॉइसिंग करना। कुछ लोगों को आप देखेंगे, आप जाएंगे तो रिसेप्शन पर लोग मिलते हैं, तो रिसेप्शन में वो होगा जो अच्छी तरह से बातचीत कर पाएगा और अपनी सेवाओं के बारे में बता पाएगा कि ये कंपनी, या जैसे हम कोई लैब में जाते हैं टेस्ट करने के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए देते हैं, तो वो पहले पूछता है, तो उसको अपनी ट्रेनिंग रहती है कि कौन कौन से ब्लड टेस्ट होंगे और उसकी क्या रेट लिस्ट है। फिर जो ब्लड टेस्ट के लिए लेता है वो एक अलग टेक्नीशियन है, और जो अकाउंटिंग रिसीट इशू करता है तो वो उसको इसकी बात की ट्रेनिंग रहती है कि उसको कितने पैसे लेने हैं और उसको रिसीट करनी है, तो उसमें सॉफ्टवेयर रहता है। तो
यानी कि कंप्यूटर पर काम आना, बातचीत करना, और आप कितना सीख पाते हैं काम। तो एंट्री लेवल पर 15, मैंने गूगल भी किया था, तो 15-16 हज़ार से लेकर 18-20 हज़ार तक की नौकरियां हैं, जो ये बेसिक स्किल्स वाली, यानी कि टैली का आना, रिसीट इशू कर देना। जैसे ही आपका लेवल बढ़ेगा, यानी कि टैली में हमें परचेज और सेल्स के अलावा एंट्री नहीं आती है, क्योंकि किसी को तो परचेज और सेल्स के ऊपर बिठा देंगे, उसको परचेज सेल्स की आती है, बाकी चीजें नहीं आती, बैलेंस शीट नहीं आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आता है, रिसीवेबल्स को नहीं दे सकता है। कि देखिए, अगर मेरे पिताजी ने मेरे को बोला कि जरा दुकान पे देखो उधार किसको किसको दिया हुआ है और किनका किनका 1 महीने से ऊपर हो गया है, तो अगर ये एनालिसिस हम कर पाएंगे अकाउंट्स में से, जो कि सॉफ्टवेयर भी देता है, तो फिर हमारी कमांड देने की पोजीशन, सॉफ्टवेयर में से डाटा निकालने की हमारी चीजें, या एक्सेल पर काम करने की जो चीज है, बैलेंस शीट को समझना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को समझना, तो जितने जितने हमारी चीजें बढ़ती जाएंगी हमारे बुके में, तो उतनी वो सैलरी और एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग, ये सब के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा। तो जूनियर अकाउंटेंट हो सकता है, फिर अकाउंटेंट हो सकता है, सीनियर अकाउंटेंट हो सकता है, और फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकता है, तो फाइनेंशियल एनालिस्ट को मिलेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अब 3 साल ऑडिट और उस तरह से करके आते हैं, तो 40-50 हज़ार से ऊपर से फिर वो शुरू कर सकते हैं। अब उसमें भी क्या रहता है कि एक ऑडिट की प्रैक्टिस रहती है, एक टैक्सेशन की भी रहती है, ऑडिट और टैक्सेशन की रहती है, और कंसल्टिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि जिसमें जेस्टेशन पीरियड रहेगा, जिसमें सीखने के लिए ज़्यादा समय रहेगा, जिसको सिखाना पड़ेगा, उसको शुरुआत में कम पैसे मिलेंगे, और जब सीख जाएगा तो एम्प्लॉयर राजी होगा कि मेरे को इसको छोड़ना नहीं है, ये मेरा काम समझता है, मेरी कमांड समझता है। मैं वकीलों को भी देखा है मैंने, ओके, ये मुंशी मेरा काम कर लेता है, मैंने बोला तो ये काम कर लिया। आप किसी ड्राइवर को रखते हैं, तो ड्राइवर आपकी जगह रास्ते जानता है, और आप कहाँ-कहाँ जाते हैं वो समझता है। तो आपको चिंता नहीं है, आपने बता दिया कि मेरे को मालवीय नगर जाना है, मेरे को नोएडा जाना है, मेरे को कनॉट प्लेस जाना है, मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, फिर आपकी चिंता खत्म। तो बेसिकली ये होती है कि एम्प्लॉयर की चिंता कितनी कम हो गई, एम्प्लॉयर को कितना कॉन्फिडेंस हो गया, और आप में स्किल, वो स्किल के बिना नहीं आएगा, और स्किल अर्जित करने के लिए मेहनत ज़रूरी है। और अगर मैं इसको रीसेंट चीज़ों से जोड़ूँ, तो अभी थोड़े दिन पहले ये कहा गया कि कंपनीज़ में इंटर्नशिप के लिए सरकार प्रयास करेगी। तो इंटर्नशिप का प्रयास हुआ, तो यानी कि इंटर्नशिप में पैसा भी बहुत थोड़ा मिलता है, यानी कि आने-जाने का खर्चा भी निकालें, उसके बाद जेब खर्ची से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन वो उसको एक्सपोज़र दे रहे हैं कंपनी वाले, और वहाँ पे वो सीखेगा कि बिज़नेस किस तरह से चल रहे हैं और उनका रोल क्या है। अगर वो रोल समझाने में उनको लगा, तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अकाउंटिंग के साथ भी वैसा ही है। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा, मैं टॉपिक्स भी देख रहा था, जो इस 1 महीने के जो कोर्स रन कर रहे हैं अकाउंट्स का पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, वो करेंगे। लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी के लिए मेहनत ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है, लगन के साथ सीखना ज़रूरी है, और उसके बाद जब आपके पास वो हुनर आ जाएगा जिसकी आपने चर्चा की, तो फिर वो अ, तनख्वाह भी बढ़ेगी। जैसे-जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है और हुनर बढ़ता है, तो उसके साथ 20,000, 25,000 इस तरह से आगे भी बढ़ सकते हैं। और नरेंद्र जी, एक मेरा सवाल है आपको कि जो हमने बोला कि एक जब एंट्री लेवल है उसके बाद उसको एनालिसिस करना आ जाता है, समझना आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, तो कितना पीरियड उस लड़का या लड़की को लगाना होगा
कि मैं इतना पीरियड तो मुझे ऑन द जॉब ट्रेनिंग करनी है, जिससे मेरे को मैं काबिल बनूंगा कि मेरे ऊपर एम्प्लॉयर मेरा। और देखिए ऐसा है ज्योतिका जी, वो कोई जल्दी सीख सकता है, कोई समय लगाकर पढ़ेगा भी। आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बुक्स हैं। तो ये तो इंडिपेंडेंट कितना मेहनत करता है और कितना उसको एक्सपोजर मिल पाता है और कौन सी जगह पे चला गया। अब हम इनकम टैक्स में आ गए तो हमें बहुत बड़े बड़े केसेस करने को भी मिले, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से थे। तो ये तो डिपेंड करेगा कि किस जगह गए। बट अकाउंट्स ऐसा देखिए, टेक्निकल सब्जेक्ट भी है और इसमें वेरियस लेवल्स हैं। तो कुछ लेवल प्लानिंग एनालिसिस के हैं और कुछ लेवल एंट्री, डेटा एंट्री और उससे संबंधित हैं। जैसे ही हम एक लेवल में पारंगत हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, फिर वो दूसरे लेवल को सीखने में आसानी होगी और फिर हम सीख पाएंगे। जैसे एंट्री आएंगी, जनरल एंट्रीज आएंगी, फिर हमें अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से जाते हैं, एसेट्स वाले कौन से हैं, लाइबिलिटीज वाले कौन से हैं। इस तरह से जब हम समझ आ जाएगी अकाउंट्स की, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम वगैरह में पढ़ाया जाता है, 11वीं 12वीं में भी पढ़ाया जाता है, तो फिर हमें एक्चुअली काम करने में टैली हो या जो हो, मैं कुछ और भी देख रहा था, कुछ और सॉफ्टवेयर हैं आजकल टीवी में या कुछ जगह में आते हैं कि खाता बही। तो वो सभी छोटे बिजनेसेस रखना चाहते हैं अकाउंट्स, तो एक ऑनलाइन कुछ अवेलेबल हैं। तो इस तरह के हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे तो 4-6 महीने तो लग जाते हैं उसको सीखने में। और फिर उसके बाद क्या है कि उसका इंटरेस्ट है कि मैं कितना सीखता हूँ। तो देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी 3 साल का रहता है, फिर भी जब एम्प्लॉयबिलिटी होती है, क्योंकि ऑडिट आ गया, उसको उसके सीनियर्स के साथ बैठ के सीखा, विजिट किया इंडस्ट्री का, विजिट किया बिजनेसेस का, उसने ऑडिट किया। फिर बड़े ऑडिट में अलग प्रोसीजर हो जाते हैं। तो एक्सपोजर और उसकी कोई उस तरह से सीमा नहीं है। मैं एक बार थोड़ा सा रनिंग उसमें बताना चाहूंगी अपने स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को, कि हम कौन कौन सी क्लासेस लेने वाले हैं, क्योंकि हमारा टाइम अब बिल्कुल खत्म होने की तरफ है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास कल रहेगी वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सीए अविनीश माटा लेंगे, सीए हिमांशु मोहता लेंगे उसकी अगली क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, सीए ममता लेंगी बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, विक्की अकाउंटेंट लेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जर्नल एंट्रीज एंड लेजर, विक्की अकाउंटेंट लेंगे टेली बेसिक इंट्रोडक्शन एंड डाउनलोडिंग टेली, कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, विक्की लेंगे टेली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्रीज एंड लेजर, और फिर विक्की की क्लास रहेगी टेली अकाउंटिंग एंड एक्सपेंडिचर विद असाइनमेंट, टेली असेट्स एंड लाइबिलिटीज विद असाइनमेंट विक्की लेंगे, और उसके बाद जीएसटी जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विद असाइनमेंट अकाउंटेंट ओम जी लेंगे, सेल्स एंड परचेज विद जीएसटी इन टेली अकाउंटेंट ओम जी लेंगे, बैंकिंग एंड ऑनलाइन फ्रॉड सीए ममता लेंगी, और उसके बाद 14 अप्रैल को हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती सेलिब्रेट करेंगे, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सीए हिमांशु मोहता लेंगे, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स विद असाइनमेंट एंड टेली विक्की लेंगे, विक्की गौतम लेंगे, ट्रायल बैलेंस विद एंट्रीज ऑफ जीएसटी एंड टीडीएस सीए विजेंद्र गुप्ता लेंगे, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल एंड असाइनमेंट सीए ममता लेंगी, फिर एक्सेल एंड असाइनमेंट सीए ममता लेंगी, और एक्सेल एंड असाइनमेंट एक्सेल विद असाइनमेंट्स 3 दिन की क्लास सीए ममता लेंगी, बेसिक एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीए मुनीश उपनेजा लेंगे, बेसिक एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट सीए संदीप गुप्ता लेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न सीए बलदेव लेंगे, टेक्नोलॉजी जीमेल चैट जीपीटी ट्रांसलेट एक्सेट्रा एडवोकेट अभिषेक लेंगे जो आज हमारे होस्ट हैं आज की क्लास के, हाउ टू फेस इंटरव्यू आसिफ आजमी लेंगे, और एक्सपीरियंस शेयरिंग अकाउंट ट्रेनिंग क्लास थ्रू वीडियो सीए विनोद कालरा उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर एक टेस्ट रखेंगे, हम सभी स्टूडेंट्स को ये बता दें कि एक टेस्ट होगा
जिसमें कि अकाउंट्स की आप शेयर करेंगे, मतलब जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको हम आपको उस टेक्स्ट के माध्यम से आपको एवेल्युएट करेंगे कि आपने कितना सीखा, कैसे पता चला, और सभी स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, उनको सबको हम कैश इंसेंटिव देंगे। मतलब ये सभी के लिए आप ध्यान रखें कि जो क्लासेस अच्छे से अटेंड करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, रेगुलर होंगे, तो हम उसके अनुसार उनको कैश इनाम होते हैं, हमारा जो रिवॉर्ड होता है वो कैश में होता है, वो दिए जाएंगे। और इस ट्रेनिंग के बाद जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे, जो सीरियस होंगे, जो आगे पढ़ना चाहेंगे, तो हम उनको इंटर्नशिप का भी मौका, अवसर प्रदान करेंगे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग इसके साथ वो कर सके। और हम कुछ कंपनीज के डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, जहां पर आप अगर कंपनी ने पाया कि आप उस कार्य के लिए उचित है, तो वहां आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी, ट्रेनिंग कराई जाएगी। और जो कुछ स्टूडेंट्स इस सक्षम रोजगार सोसाइटी के साथ जुड़े रहे और आज कमा रहे हैं, उनके हम कुछ एक्सपीरियंस कमा रहे हैं या बेहतर अपनी शिक्षा को कैसे स्कॉलरशिप के साथ कर रहे हैं, तो उनका भी हम एक्सपीरियंस शेयरिंग यहाँ पर रखेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप में से कोई भी, नरेंद्र जी आज हमारे साथ हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहें तो कृपया करके आप सवाल पूछें। सवाल से पहले मैं इसके जी ऊपर 2 शब्द बोलूंगा। जी आपने इतने सारे टॉपिक्स गिनवाए, तो गिनते हुए 2-3 चीजों का देखिए अमलगमेशन है ये। एक बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और क्योंकि बहुत सारे लिस्टेड कंपनीज रहती हैं, उनके बैलेंस शीट्स आती हैं, तो ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम सुन रहे रहते हैं। फिर दूसरा ये है कि उसको सॉफ्टवेयर में टैली का जिक्र कई जगह पे किया गया, तो ये भी टेक्नोलॉजी का अमलगम हो गया कि वहां पे हमें करेंगे तो अपने आप कुछ हमें सहूलियतें मिल जाएंगी। फिर एक्सेल शीट, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। फिर हम टीडीएस पर गए, जीएसटी पर गए, और जीएसटी और टीडीएस के साथ देखिए ये किया, तो ये लॉ जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं उसके, और फिर हम रिटर्न के ऊपर आए। तो ये सारे के सारे लॉ, अकाउंटिंग, बिजनेस और टेक्नोलॉजी, इन सब से जुड़ा हुआ ये कोर्स है। जी, प्रश्न हो तो। जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। अभिषेक, तुम पूछ लोगे कुछ सवाल सर से? सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। जरूर मैम। सर मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि जैसा कि मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ और मुझे कॉमर्स की कोई शिक्षा मुझे नहीं मिली पहले, तो अकाउंट सीखने के लिए, ट्रेनिंग को लेने के लिए क्या जरूरी है कि मुझे कॉमर्स से होना या कॉमर्स की नॉलेज होना? आप, जैसा मैंने बताया कि अकाउंटिंग लार्जली, अधिकांशता जो बेसिक है, बेसिक अकाउंटिंग, वो कॉमन सेंसिकल है। अब जो कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, देखिए कई लोग बीकॉम करते हैं, पत्राचार के माध्यम से, स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से भी करते हैं। तो और आप अगर सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब पर भी चैनल्स होंगे। मैंने उसको देखा तो नहीं है, लेकिन ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल जरूर होंगे। तो कॉन्सेप्ट, आप अकाउंटिंग से घबराइए नहीं। अब सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट जनरली एक कॉमन सेंस पर हैं, और कुछ चीज़ें फिर जैसे ही एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं तो फिर कुछ हमें एक्स्ट्रा चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। जनरल कॉमन सेंस और हमारी बेसिक इंटेलिजेंस है, तो हम उसको आराम से सीख लेंगे। लेकिन मेहनत का काम है, और सीखना है एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए। जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। थैंक यू सर फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन। अनुपम तिनका से आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। यस सर।
सर मेरा सवाल था, क्या बेसिकली भी सीख सकते हैं क्या, मतलब अपने निजी कामों के लिए अकाउंटिंग वगैरह जो होते हैं, फाइल्स वगैरह होते हैं, उसको भी सीखने के लिए या करने के लिए भी सीख सकते हैं? मैं I there is a voice is breaking. Could somebody else अनुपम, repeat? आप अपना वीडियो ऑफ करके बोलो। अनुपम, Yes, ma'am. तो मैं वीडियो ऑफ करो, अपना वीडियो ऑफ। अब बोलो। मैम मेरा सवाल ये था कि नॉर्मली हम जो बिल्स वगैरह फाइल्स वगैरह होते हैं उनको भी अच्छे से करने के लिए अकाउंटिंग सीख सकते हैं ना? जी देखिए, अब सर ने पूछा अभी कि जैसे मैंने बताया कि अगर बिल्स, किसी को बिल्स काटने हैं तो कोई रेट लिस्ट होगी, कुछ होगा, उसका जीएसटी कितना लगता है, उसमें क्या चीज भरनी है, क्योंकि जीएसटी में सामने वाली पार्टी को अगर वो बिजनेस टू बिजनेस सेल्स है तो उसको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, तो उसका जीएसटी का नंबर लिखना पड़ेगा। अगर जीएसटी आपने पे किया है और आप बिजनेस से हैं और आपके इनवॉइस पर सामने वाली पार्टी ने जीएसटी नंबर नहीं लिखा आपका, तो फिर क्रेडिट कैसे मिलेगा, क्योंकि उसको अपने रिटर्न में भरना होगा। तो बहुत सारी चीजें रूल से सीखनी पड़ेंगी। अ, उसके अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि किसी को सिर्फ सेल्स पर बैठना है, किसी को उसके रिटर्न्स बनाने हैं, तो वो अलग अलग कुछ कुछ चीजें हैं। तो जब आप का इंटरेक्शन होगा अकाउंटेंट विक्की से और ओम जी से और ममता जी आएंगी, तो ये सब आपको डिटेल में बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि सीखा नहीं जा सकता, सीखा जा सकता है। अब जब तक आपकी क्षमताएं लिमिटेड होंगी तो उसका स्कोप भी लिमिटेड हो जाएगा। अगर आप अपनी नॉलेज एक्सपोजर को बढ़ाते हैं और उसमें अच्छा करते हैं दूसरी चीजों में, तो आपका स्कोप बढ़ जाएगा, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। एनी अदर क्वेश्चन? तन्वी कुमारी प्लीज सर अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू सर। यस सर। सर मेरा एक सवाल है, अकाउंटेंसी सीखने के लिए कोई स्किल्स की रिक्वायर्ड होती है? अगर देखिए होती है तो कौन से स्किल्स? देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई के लिए जो भी चीजें चाहिए आप मन लगाकर पढ़ें, उसको सीखें। क्लास तो 1 घंटे की होगी। जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज करना है, मेहनत की जरूरत है, समझने की जरूरत है। गलतियां भी करेंगे, लेकिन गलतियों को ठीक करके करेंगे तो फिर हमें अ, आ जाएंगी चीजें। स्किल्स तो यही है कि अ, आजकल अकाउंटिंग कंप्यूटर पे रहती है, तो कंप्यूटर का चलाना और उसके कमांड्स को समझना, इतना ही है। ओके सर, थैंक यू। वो आपके जो रिसोर्स पर्सन आएंगे वो डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे। अभी ज्योतिका जी ने सब बताया टॉपिक्स के बारे में। ओके यस सर। नितिन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर मतलब जो जीएसटी इंस्पेक्टर होता है एक, और एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है, तो सर डिफरेंट क्या होता है मतलब दोनों में? देखिए, सर मेरा प्रश्न होगा। हाँ नहीं कोई बात नहीं। इनकम का क्या मतलब है? आय। तो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने कुछ सामान खरीदा, मैंने अपने स्टॉक किया, मैंने एक शॉप ली। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर मैंने कुछ लोगों को वो सामान बेचा थोड़ा मुनाफे पर, और मैंने कुछ खर्चे किए, मेरा बिजली का खर्चा हुआ, दूसरा खर्चा हुआ। तो जब मैं खरीदूंगा और बेचूंगा तो उसमें जीएसटी का लॉ काम आता है कि
और जब मैंने हिसाब किया कि मैंने खरीदा क्या और बेचा क्या, यानी कि अगर कोई मैंने चीज खरीदी 100 रुपए की, उसको 120 की बेची, तो 20 का मेरा मार्जिन हुआ ग्रॉस। लेकिन मैंने किराया दिया, भाड़ा दिया, लाइट का खर्चा दिया, चाय पानी का खर्चा हुआ, मेरे साथ आदमी लगे हुए थे, तो इन सब को करके फिर जो मुझे नेट बचत हुई खर्चों को हटाने के बाद, यानी कि सेल्स में से परचेज और उसको परचेज को लाने के लिए सामान प्लस बाकी सारे खर्चों को निकाल दें, तो फिर मेरी इनकम होगी। और वो इनकम रहती है, इनकम तो बाद में होगी। कुछ और इसमें से पूछना चाहते हैं? नो सर, जी थैंक यू सर। सर। जीएसटी जी सर, जीएसटी मेरा देखिए, जीएसटी जनरली इनडायरेक्ट टैक्स है, तो खरीद और बेच पर रहता है। यानी कि अगर किसी फैक्ट्री में कोई सामान बना है, एक तकिया बना, और तकिए की कीमत आपको देनी पड़ रही है 100 रुपये, तो उसके कहता है 100 रुपये और 18% उस पर जीएसटी लगेगा, तो 118 रुपये का आपको दिया, ठीक है ना। तो उसमें उसका प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, ग्रॉस प्रॉफिट। हो सकता है कि लॉस हो, बाद पता लगा कि वो उसके नहीं बिक रहे, उसने 80 रुपये में बेच दिया जबकि खरीदा 82 में है, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो इनकम इंक्लूड्स लॉसेस, तो उसमें नफा नुकसान हो सकता है, खर्चे ज्यादा हो गए। लेकिन जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, वो अप्रत्यक्ष कर है। आप सब लोग टैक्स पेयर हैं, कोई रिटर्न इनकम टैक्स की नहीं भरता है, तो भी आप टैक्स दे रहे हैं। जो आप चीज खरीद कर आते हैं, आपने पेपर खरीदा, पेन खरीदा, कंप्यूटर की पेन ड्राइव खरीदी, तो ये मोबाइल खरीदा, इन सब में आपने टैक्स की तरफ कंट्रीब्यूट किया है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, पता ही नहीं लगा क्योंकि सेल प्राइस में पहले से ही एम्बेडेड है, इंक्लूडेड है, उसमें इंक्लूड किया हुआ है। और इनकम टैक्स का ये है कि जैसे मान लो कि मैं नौकरी करता हूं, तो नौकरी से मेरे को आय हुई और मेरी अब इस साल के बाद से 12 लाख से ज्यादा होगी, तो फिर मेरे को टैक्स भी देना पड़ेगा। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। इंट्रोड्यूस करो। Good evening, sir. My name is Sachin Akwar and I am a student of Saksham Rozgar Society since 2 years. सर, मेरा क्वेश्चन था कि अगर हमें अकाउंट की क्लास लेनी है तो हमारा कौन सा सब्जेक्ट मतलब स्ट्रांग होना चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अकाउंट की नॉर्मल क्लास को अटेंड करने के लिए? देखिए, अभी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, और जो लोग फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे तो वो बुक्स का भी बताएंगे कि ये बुक्स में से आप पढ़ सकते हैं। मैंने जब किया तो मैं 11वीं 12वीं में मैंने कॉमर्स को ऑप्ट किया था, तो स्कूल में ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए गए थे। उसमें जर्नल एंट्री, लेजर, रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन। तो कोई आदमी बड़ी कंपनी में बैंक का ही देखता है, तो बैंक में जमा कराता है, चेक निकालता है, अभी तो ऑनलाइन भी देखना पड़ेगा, तो अलग अलग चीजें होंगी। मैंने बताया कि जनरली कॉमन सेंस का है, और फैकल्टीज आपको बताएंगी। मैं तो बहुत सारी किताबों के नाम ले सकता हूँ, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है। बेसिक है कि आपकी लगन, कोई भी चीज सीख सकता है। अब मोबाइल चलाना तो 5 साल का बच्चा भी सीख लेता है, उसको कोई स्कूल तो नहीं गया है ना। तो आप सीख सकते हैं, आपको इंटरेस्ट आएगा तो सीखें, और आपको लगता है कि यस, दिस इज माय कप ऑफ टी, ये मैं सीख सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है, तो फिर आपका मन लगेगा, और आपको वो जिसको हम कहें कि एक स्किल आप में डेवलप हो जाएगी, आपको एक समझ आ जाएगी अकाउंट्स की। ओके और सर, ये थैंक यू सर। कोई भी चीज आपको समझ आती है तो उसका आगे कहीं ना कहीं अच्छा प्रयोग भी होगा, यूजफुल होगी। थैंक यू सर।
I think we can conclude here, ma'am. Hmm? So thank you. So thank you for joining us, sir, and providing us valuable insights about this accounts training program. And now I would like to request everyone to open their cameras for the screenshot और for the photographs. आप सभी अपने कैमरास को ओपन कर लीजिए ताकि हम रिकॉर्ड के लिए एक बार फोटो ले सकें साथ में. सर मुझे मीटिंग होस्ट से मतलब म्यूट किया गया है वीडियो पे, तो प्लीज मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है. अब हो जाएगा. So now I like to invite our president for presidency remarks of this session. Over to you, ma'am. आई थिंक अभिषेक वो तो हो गए, अब कंक्लूड कर दो तो साथ साथ में. हाँ, कल की जो हमारी क्लास है वो इतना समय बता दूं, कल सी अवनीश माटा क्लास लेंगे इसी समय रात के 9 बजे. आप 10 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे, कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठेंगे, नोट करेंगे हर बात. और क्लास है हमारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. यस, ओवर टू यू अभिषेक. तो थैंक यू. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अटेंडेंस के लिए मेरी अपने नाम. शुभकामनाएं सभी शिक्षार्थियों को, सभी ट्रेनिंग में भाग लेने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो लर्निंग प्रोसेस जारी रखें और नई नई चीजें सीखें और लगन से काम करें. थैंक यू सर. और अटेंडेंस के लिए आप सभी को जैसा बताया गया था, आपको अपने नाम लिखने हैं और अपने नंबर के, फोन नंबर के लास्ट के 3 डिजिट साथ में चैट बॉक्स में डाल दीजिए. सो मैं अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए आगे प्रोसीड करता हूँ. सो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आई अभिषेक on behalf of Saksam Rural Society, I am honored to extend our heartfelt vote of thanks as we conclude today's orientation session. First, my sincere gratitude to Mr. Narendra Kumar Chand, retired IRS officer and former Chief Income Tax Commissioner, for joining us today. We truly appreciate you taking the time to provide an insightful overview of the accounts training program that begins today. Your presence has added great value to this session. To all our dear students, thank you for your enthusiasm and active participation, and I hope to see the same energy in the upcoming classes. Lastly, I would like to express my sincere appreciation to Ms. Jyotika Kalra, the President of Saksam Rural Society, for her constant support and commitment to improving the quality of our training programs. Your encouragement and guidance continue to inspire us all. With that, I wish you all a wonderful evening. Thank you. So, thank you for joining नरेंद्र us जी, today. बहुत बहुत आपका धन्यवाद. आप थैंक यू सो मच जैसे फॉर महान व्यक्ति ने आज हमारी इस सेशन में पार्टिसिपेट किया और बच्चों को बहुत लाभ हुआ होगा. पर हम आपसे एक ये वादा लेना चाहते हैं कि आगे भी हमारे स्टूडेंट्स के साथ अपना समय आप दें. उनके लिए बहुत इंस्पिरेशन रहेगी, बहुत अच्छा लगेगा उनको. थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी एन अपॉर्चुनिटी एंड गॉड विलिंग आई विल जॉइन फर्दर प्रोग्राम्स. थैंक यू. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. और आज अभिषेक, कैन वी लीव? Yes, we can all leave the session now. The session has been concluded today. So कल फिर दोबारा मिलते हैं 9 बजे नेक्स्ट क्लास में. Good night to all of you. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night, ma'am.